ਈਜ਼ੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿਦ ਜਗਜੀਤ ਸਰ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਦਿਸ दैट दीज दोज, यानी बहुत ईजी वीडियो है, बहुत सिंपल सेंटेंस है ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, परंतु ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਜੋ ਸਿੰਪਲ ਵਰਡਸ ਨੇ दिस दैट दीज दोज ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, परंतु ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਯੂਜ਼ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਵਰਡਸ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਭੁੱਲਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਮਨ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਗ੍ਰਾਮਰ ਵਿੱਚ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਿਆਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟਲੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੋ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਦਾ ਸਿੰਪਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਉਹ ਬੜਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਯੂ ਆਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਲ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੂਲ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਵਰਡਸ ਦੇ ਫਿਕਸ ਰੂਲ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਦਿਸ दैट दीज दोज है, ਇਹ ਜੋ ਚਾਰ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਨਾउन ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਸਰਵਨਾਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੜਨਾਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦਿਸ दैट दीज दोज ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਰਡਸ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੇ ਰੂਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਨੁਕਤੇ ਨੇ, ਕੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਇਹ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਵਰਡਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ यह, वह, ये, वे या वो। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਟੁਵਰਡਸ ਐਨ ਆਬਜੈਕਟ, ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨੇਚਰ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਹੈ ਔਰ ਨੀਅਰ ਟੂ ਯੂ ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਦਿਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਹੈ और ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੀਅਰ ਟੂ ਯੂ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦਿਸ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਨੇੜੇ ਦਾ ਵਰਡ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੈਟ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਰਾਬਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਐਨ ਆਬਜੈਕਟ दैट इज सिंगल इन नेचर, यानी है तो इकल्ला, बट दैट इज फार फ्रॉम यू, यानी ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ दूर है और इकल्ला है, उस लिए ਅਸੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ दैट। ਹੁਣ दिस और दैट ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ और पास है, दैट एक है और दूर है। ਹੁਣ ਇਹ ਜੋ these और those है ਇਸ ਦੇ ਜੋ ਨੁਕਤੇ ਜੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ these ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ if you want to point out towards objects that are plural in nature, यानी गिणती ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ और they are near to you और ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ। it means ज़्यादा चीज़ां होण और ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ होण, संख्या में ज़्यादा है और आपके नज़दीक हैं तो लगेगा these, परंतु इसका उल्टा देखते हैं those means if you want to point out towards some objects that are plural in nature, यानी गिनती में वो एक से ज़्यादा हैं और is at distance from you और तुम्हारे से दूर हैं। ये जो वर्ड हैं this that these those, इसके एग्जाम्पल्स करने से पहले हम ये पता लगा लेते हैं, ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣ ਲਈਏ ਵੀ ਜੋ this that these those ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਨਾउन ਕਦੋਂ ਸਰਵਨਾਮ ਕਦੋਂ ਬਣਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਕਦੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ when these four words are demonstrative adjective, ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਇਹ ਕਦੋਂ ਨੇੜੇ ਜਾਂ ਦੂਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਸਿੰਪਲ ਜੋ ਰੂਲ ਹੈ having noun after this that these those, it means अगर this that these those ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ noun ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਏਗਾ adjective, demonstrative adjective। for example I like these mangoes, ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ these ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਨਾउन ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੂਲ ਪੜਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਨਾउन ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਾउन ਹੈ ਮੈਂਗੋਸ ਤੇ ਮੈਂਗੋਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ these ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ। ਨਾਓ ਕਮ ਟੂ ਸੈਕੰਡ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਿਸ ਬॉय ਇਜ਼ ਮੋਨੀਟਰ ਆਫ ਮਾਈ ਕਲਾਸ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦਿਸ ਲਗਾਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੁੰਡਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੋ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜੋ ਬॉय ਹੈ ਉਹ ਨਾउन ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਇੱਥੇ ਜੋ ਦਿਸ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਫਿਰ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਉਸ ਦਾ ਗੁਣ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ अगला सेंटेंस, अगला एग्जाम्पल those stars are twinkling in the sky, यानी ਉਹ ਜੋ ਤਾਰੇ ਨੇ those, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ, यानी those stars are twinkling in the sky। ਇੱਥੇ those ਤੋਂ ਬਾਅਦ noun ਹੈ, star noun ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੋ those ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ demonstrative
एडजैक्टिव बन जाता है। अगला एग्जाम्पल है भी दैट मैन इज हैप्पी, यानी वो इंसान, इट मीनस वो नंबर विच यानी संख्या विच गिणती विच एक है और मेरे तो दूर है यानी फार है, इस करके दैट मैन इज हैप्पी। इत्थे असीं देखिया मैन है, उस तो पहले दैट लगा है। इट मीनस यह जो दैट शब्द है क्योंकि यह उस आदमी वाल इशारा करके उसनों आम तो खास उसनों स्पैशल बना रहा है, इस करके यही जो दीज दोज दिस और दैट क्योंकि इन्हां दे बाद नाउन वर्ड यूज होया है, इस करके डेमोस्ट्रेटिव एडजैक्टिव है। असी दूसरा रूल लैने आ भी यह कदों डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी कदों यह संकेत करने वाले पड़नाम या सर्वनाम बन जाते हैं। जिदा असी पहला रूल बड़ा ईजी पढ़ा, सैकेंड रूल भी बहुत ईजी है। इट मीनस हैविंग वर्ब, वर्ब का मतलब हेल्पिंग वर्ब इज आर वाज वर। यह जो हेल्पिंग वर्ब्स ने क्रियावां ने जेकर किते दिस तो बाद लगती, दैट तो बाद आ रही है, दीज या दोज तो बाद आ रही है, तो वो जो दिस और दैट दीज और दोज है वो एक तरह के प्रोनाउन है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। हुण इत्थे एग्जांपल लैने दिस इज अ बुक, इत्थे दिस यानी डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन तो बाद इज लगा, इसका मतलब यह प्रोनाउन है। परंतु जो इत्थे हुंदा ना आई लाइक दिस बुक, आई लाइक दिस बुक, तो बुक नाउन है, दिस तो पहले लग गया एडजैक्टिव यानी विशेषण है। परंतु जो लिखा है दिस इज अ बुक यानी इस डेमोस्ट्रेटिव वर्ड के नाल जो हेल्पिंग वर्ब लगा तो यह जो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन बन जाता है। सैकेंड जो एग्जाम्पल है दैट इज एन इंपोर्ट यानी वो एक शाही की दवात है। दैट इट मीनस सिंगल इन नंबर और फार फ्रॉम मी, इसका मतलब मेरे तो दूर है और नंबर च क्या, इस करके दैट इज एन इंपोर्ट यानी वो एक शाही की दवात है। इत्थे इज लगा हेल्पिंग वर्ब है, इत्थे इसका मतलब है भी इस तो पहले वाला जो दैट है हुण वो एडजैक्टिव नहीं है, वो प्रोनाउन है। अगला सेंटेंस देखते हैं दीज आर नॉट मैप्स यानी यह नक्शे नहीं है। इत्थे जो दीज है हुण सानू पता होना चाहिए दीज तो बाद हेल्पिंग वर्ब लगा है, क्रिया वाला शब्द लगा है, इस करके यह जो दीज है दीज आर नॉट मैप्स, यह डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है क्योंकि यह संकेत करके किसी चीज़ को दूर या नेड़े दस रहा है। अगला एग्जाम्पल है दोज आर शार्प नाइव्स यानी वो तिखियां छुरियां ने। इट मीनस इत्थे आर आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया, उस तो पहले जो दोज लगा है इट मीनस ए प्रोनाउन है। जे किते इदां हुंदा ना आई वांट टू परचेज दोज नाइव्स, जे दोज नाइव्स हुंदा ते नाइव्स नाउन है, इत्थे जो दोज होना सी एडजैक्टिव बन जाना सी। हुण असी इस तो बाद करते हैं अपने सेंटेंस विच दिस दैट दीज दोज असी इसनूं किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट अस प्रैक्टिस फॉर दीज वर्ड्स। असी इन्हां वर्ड्स की दिस दैट दीज दोज की प्रैक्टिस करते हैं। सब तो पहली गल लिखी है यह एक किताब है यानी हुण असी इन्हां दा ही प्रयोग करना है। यह एक पुस्तक है, असी लिखांगे यह यानी दिस तो बाद आएगा इज, दिस इज अ बुक। हुण ध्यान नाल देखो भी इत्थे जे हेल्पिंग वर्ब है इसका मतलब है जो दिस है यह प्रोनाउन है। जे इत्थे हुंदा है ना आई लाइक दिस बुक, जे किसी नाउन तो पहले दिस आंदा फिर वो एडजैक्टिव होना सी। दूसरा सेंटेंस है ए नवीं कापियां हन, ये नई कॉपियां हैं, इसका मतलब ज़्यादा ने और नेड़े ने। अगर नेड़े होए ज़्यादा होए इसका मतलब दीज और है इसका मतलब दीज आर न्यू नोटबुक्स, इसका मतलब ए नवीं कापियां हैं। अगला सेंटेंस है साडा ओह इसका मतलब एक है और दूर है, इसका मतलब दैट। ओह अंब दा रुख यानी पेड़ है यानी दरखत है, वह आम का पेड़ है। अगर वह है इसका मतलब वो दूर है और एक है, इट मीन्स दैट है इसका मतलब एक है, इसका मतलब इज आएगा दैट इज मैंगो ट्री। अगला सेंटेंस है ओ पंछी हन, जे हुंदा ए पंछी हन दीज आर बर्ड्स क्योंकि वो नेड़े और ज़्यादा है। इत्थे लिखा ओ पंछी है तो दैट इज अ बर्ड। हुण ओ ज़्यादा ने, ओ पंछी हन दोज आर बर्ड्स। इन्हां सारे वाक्यां दी तुसीं मेरे नाल बोल बोल के प्रैक्टिस करो। इत्थे लिखा है ओ पंछी हन, असीं लिखांगे दोज आर बर्ड्स क्योंकि वो ज़्यादा है
ਔਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਨਾਟ ਆਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਮੀਨਸ ਇਜ਼, ਐਮ ਆਰ, बी, was, were, has, have, had, ਇਹ जितने भी will shall वाले जितने भी हेल्पिंग वर्ब है इन्हों तो बाद ही नॉट लगता है, नॉट पहले नहीं लगेगा, हमेशा हेल्पिंग वर्ब तो बाद लगेगा। ਇਹ पंजाबी दियां कहानियां नहीं ਹਨ, इट मीनस these ज़्यादा ने और ਇੱਥੇ ਨੇ। ਇਹ पंजाबी दियां कहानियां नहीं ने, ਇੱਥੇ ने, ਇਹਦਾ मतलब these। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਦੋਜ਼ ਆਰ ਨਾਟ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੋਰੀ ਜਾਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਆਫ ਪੰਜਾਬੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਥੀਸ ਕਿਉਂਕਿ ਨੇੜੇ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਥੀਸ ਆਰ ਨਾਟ ਲਗਾਣਾ ਤੇ ਇਜ਼, ਐਮ ਆਰ, ਵਾਜ਼, ਵਰ, ਇਹ ਜੋ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਥੀਸ ਆਰ ਨਾਟ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਆਫ ਪੰਜਾਬੀ, ਦੋਨੋਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੇਰਾ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਦੈਟ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ ਔਰ ਦੂਰ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਰਜਿਸਟਰ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ। परंतु क्योंकि इत्थे क्या लग गया, क्वेश्चन मार्क लग गया, जो असीं क्या तो शुरू करते हैं इट मीनस जो हैल्पिंग वर्ब है वो चुक के उठा के बाहर लैके सब तो पहले लगा दो और उन्होंने खाली छड़ दो, दोबारा हैल्पिंग वर्ब नहीं उत्थे आ सकता। इत्थे असीं करांगे दैट इज़ योर रजिस्टर, नहीं वो तुहाडा रजिस्टर है। की वो तुहाडा रजिस्टर है, असीं इस नूं चक के इस नूं इस तो पहले ले आवांगे, इज़ दैट, दोबारा इस नहीं लगेगा, दो बार नहीं हो सकता, इज़ दैट योर रजिस्टर, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि वो प्रश्नवाचक स्वभाव वाला सेंटेंस है। वो तेरा रजिस्टर है, दैट इज योर रजिस्टर, वो तेरे रजिस्टर हैं, दोज आर योर रजिस्टर। अगला सेंटेंस है यह बच्चे खुश हैं, ਇਹਦਾ मतलब बच्चे खुश हैं, वो ज़्यादा ने और ए यानी नेड़े ने। जो असी नीयर की गल करते हैं और प्लूरल की गल करते हैं इट मीनस दीज आएगा। इत्थे लिखांगे यह बच्चे खुश हैं, दीज बच्चे का मतलब स्टूडेंट्स, पर इत्थे विद्यार्थी नहीं लिखा, इसका मतलब है दीज चिल्ड्रन, हैल्पिंग वर्ब है आर, फिर है हैप्पी, वो बहुत खुश हैं। इत्थे ए जो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है कि डेमोस्ट्रेटिव प्रनाउन है, तुसी हुणी सोच के दसना। अगला सेंटेंस उदों तक असीं करते हैं। अगला सेंटेंस है कि ए मुंडे तेरे दोस्त हैं। सेंटेंस बड़ा औखा हो गया, इस करके असीं की नूं छुपा दिता। क्या ये लड़के तुम्हारे मित्र हैं, असीं की नूं छुपा दिंदे हां, असीं लिखदे हां भी ए मुंडे तेरे दोस्त हैं। दीज क्योंकि वो नेड़े है और ज़्यादा है, दीज बॉयज आर योर फ्रेंड, फ्रेंड्स। परंतु ऐसे प्रश्नवाचक स्वभाव वाला है, क्या ये लड़के तुम्हारे मित्र हैं, उहदा की रूल है, असी ए जो हैल्पिंग वर्ब है आर, असी इसनूं पहले ले आए, आर दीज बॉयज, दोबारा आर नहीं लगेगा, एक बार हैल्पिंग वर्ब सी चुक के बाहर रखता, अंदर खाली हो गया, आर दीज बॉयज योर फ्रेंड, क्वेश्चन मार्क। इस तरह से क्या वाले सेंटेंस नूं बनाना है, जे सिर्फ क्या वाला सेंटेंस है। अगला सेंटेंस है ओ तेरा घर है, इहदा मतलब ओ दूर है, इहदा मतलब है ओ एक है, इहदा मतलब इत्थे दैट लगेगा, असीं लिखांगे दैट इज योर होम। असीं जे इदां लिखना होंदा, ट्रांसलेट करना होंदा कि वो तेरा घर है, क्या वो तुम्हारा घर है, फिर असीं की लिखदे इज दैट योर होम, क्वेश्चन मार्क। क्योंकि जो असीं क्या वाले तो शुरू करते हैं, प्रश्नवाचक तो शुरू करते हैं, इट मीनस हैल्पिंग वर्ब चुक के सब तो पहले और उस तो बाद अखीर विच प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क। हुण मैनूं यह गल दसो कमेंट बॉक्स विच लिख के कि यह वीडियो तुहानूं समझ आ गई, ईजीली आ गई। हुण असीं इस दे नाल कुछ एक्सरसाइज भी करते हैं, तुसीं उन्हां एक्सरसाइज नूं अपनी कापी ते करो और इस नूं मेरे नाल शेयर करो।
ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਿਦਾਂ ਲੱਗੀ, ਆਪ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਯਾਨੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਕੇ। ਅਸੀਸਾਂ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਓ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਆਪ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।